हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे, दैट इज 6 जून 2022। आज 6 जून 2022 का हिंदू न्यूज़पेपर डिकोड करना है बिकॉज today's newspaper there are lot of important articles from the perspective of prelims that we have to cover. Prelims के perspective से if you are preparing for 2023 there are going to be a lot of informative articles. So let's start with this picture on page 1. Page 1 पे आप देखोगे ये एक picture आई है छोटी सी. Okay. Now this image says a migrant fisherman in search of fresh catch at Chulia Dam. So this image mentions the Chulia Dam over here. Where is it? It is in Kerala's पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। ये चुलिया डैम जो है केरला के पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, this चुलिया डैम was constructed in 1960 and it is built across which river? Across the Chulia river. This Chulia river is a tributary of Gayatri Puza river. आपने सुना होगा केरला के गायत्री पूजा रिवर के बारे में. That river is a tributary of the Bharat Puza river, which is the second longest river in Kerala. Here यहाँ पर आप देखोगे this is the Bharat Puza river जो केरला की second longest river मानी जाती है. Which one is the first longest river in Kerala? You have to let me know in the comment section. आप मुझे comment section बताओगे कि first longest river in Kerala कौन सी है. And here in the map as you can see we have the Neliyampati mountain also, which is adjacent to the Chulia river. Chulia river के ही साइड में आप देखोगे नेलियमपाती माउंटेन्स पाए जाते हैं. This is again locational based question which is important for prelims. All right. Now what is a dam? जब हम dams की बात करते हैं there are different kinds of dams also that you need to study. Dam is a kind of barrier which stops the flow of water and it results in creation of a reservoir. And the water which is stored in the reservoir can hence be used for generation of electricity, which is known as hydroelectricity, providing water for irrigation, aquaculture or drinking etc. Alright, now let us understand the different types of dams. Dams के भी अलग अलग प्रकार होते हैं. For example, here in the image you can see this is an arc dam. Arc dam एक concrete dam होता है which is curved upstream. River का जो upstream portion होता है वहाँ ये dam carved होता है and it is designed in such a way that the force of water along the walls of the dam, okay, which is known as hydrostatic pressure, it presses against the arc. ये तो आर्क बना हुआ है ना, जो पानी का प्रेशर होता है वो ये जो वॉल्स है आर्क की उसके अगेंस्ट प्रेस करता है. सो इट इज सुटेबल फॉर द नैरो कैनियंस, जहां पर गॉर्जेस होते हैं, नैरो कैनियंस होते हैं, वहां इस तरीके का डैम तैयार किया जाता है. एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन टर्न्स you can say strengthens the structure of the dam. Then we have the gravity dam. This is the journal diagram of gravity dam. ये journal dam से जो आपको हर जगह ही देखने को मिलते हैं, that is the gravity dam which is constructed from concrete stone masonry. Okay, जो आपकी बोल सकते हो ईंट होता है, पत्थर होता है, रोड़ा होता है, उससे इसको बनाया जाता है. It is designed to hold back the water and this particular dam टाइम आने पर ही वाटर को रिलीज करता है जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बट बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, देन ओवर हियर वी हैव द आर्क ग्रेविटी डैम. फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आर्क ग्रेविटी डैम. इट इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड ग्रेविटी डैम. यहाँ पर हमने जो ग्रेविटी डैम और आर्क डैम देखे हैं ना, उसी का कॉम्बिनेशन है आर्क ग्रेविटी डैम. एंड द ग्रेविटी डैम इट कर्व्स अपस्ट्रीम इन द नैरोइंग कर्व. इनवर्ट कॉम्प्रेशन होता है, आप देख रहे हो अंदर की तरफ कॉम्प्रेशन इसका हो रहा है, ठीक है. एंड यहाँ पर जो पानी है उसका लेटरल, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है वो डैम के वॉल पर एक्ट करता है. ओके, so basically it also strengthens up the structure of the dam. Then we have the barrages. ये आपने देखा होगा common form of barrages. यहाँ पर ये diversional dam होते हैं and there are different gates. Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4. Different kinds of gates are there which are used or which can be opened or closed to control the amount of water which passes through it. And then we have the embankment dam. ये आप देखोगे ये आपका embankment dam है, ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप में जो है. सो इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल डैम विच इज क्रिएटेड बाय प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेमी प्लास्टिक मूल.
तो ये सैंड से, सॉइल से, क्ले से, रॉक से तैयार किया जाता है ये डैम, ठीक है। नैरो जितने भी लेक टाइप एरियाज होते हैं, बिग लेक वाटर बॉडीज, देयर वी फाइंड द एम्बैंकमेंट डैम्स आल्सो। देन वी हैव द सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर पेज 1 which is world's first fishing cat census which is done in Chilika. So Chilika Lake, which is the Asia's largest brackish water lagoon, here the first count of census means population count of fishing cat has been done, and it has been discovered that Chilika Lake has 176 fishing cats, and this census count has been done by Chilika Development Authority in collaboration with Fishing Cat Project. Now when we talk about the fishing cats, what are the fishing cats? Before we move ahead, here's a small announcement for all of you. Unacademy Plus के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस जून 8 11:59 PM से बढ़ जाएंगे 20%। अगर आप अपनी तैयारी यूपीएससी की आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर परफेक्ट गाइडेंस फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन जर्नी, आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। जून 8 से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्राइस भी कम मिलेगा, प्लस यू कैन यूज कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल। न्यू बैचेस ऑन अनअकैडमी प्लस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th June एंड 15th June। फटाफट से आप अपने प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप इंस्टीट्यूट से अनअकैडमी प्लस पर आकर आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। अनअकैडमी प्लस पर हमने ऑप्शनल कार्निवल भी लॉन्च किया है, जहां पर नए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लॉन्च हुए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट विद द प्रीलिम्स एंड द मेंस preparation you can prepare your optional as well. इंटरव्यू की प्रिपरेशन you all know that अनअकैडमी प्लस day 1 से ही करवाता है। If you have doubts, do not think that in the online classes doubts will not get solved. Even your doubts will be solved through the dedicated doubt solving sessions. So what are you waiting for? फटाफट से आज ही अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड यूज कीजिए अर्पिता10 और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिशिंग कैट्स जो होते हैं वो जो आपकी नॉर्मल हाउस कैट होती है ना, उसके ट्वाइस साइज के, उसके दुगने साइज के फिशिंग कैट्स होते हैं जो कि नॉक्टर्नल होते हैं। हम किसी भी नॉक्टर्नल स्पीशीज की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर नॉक्टर्नल स्पीशीज आर दोज व्हिच आर एक्टिव एट नाइट। जो रात का कह सकते हो ना, जागता है, जो रातों को जागता है, रातों को उसको नींद नहीं आती है, रातों को ज्यादा एक्टिव होता है, उसे हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। फिशिंग कैट्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल स्पीशीज। इनका जो आहार होता है, द एनिमल्स और you can say species that they prey on are the fishes, frogs, ये सांप भी खा लेती हैं फिशिंग कैट्स, बर्ड्स को भी खाती हैं, और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना उनकी डेड बॉडीज को भी ये खा लेती हैं, कारकैसेस को भी खा लेती हैं। जो आपकी नॉर्मल बिल्ली होती है ना उसके डबल साइज की होती है ये फिशिंग कैट्स। और IUCN के रेड लिस्ट में ना अभी इनकी जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा खतरे में है, वल्नरेबल है ये लोग। इन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो दे आर अंडर Schedule 1 एंड दे ब्रीड ऑल ईयर, ठीक है। दैट मीन्स जो रिप्रोडक्शन है ये पूरे साल इनका चलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही ये रिप्रोड्यूस करती हैं। दे ब्रीड थ्रू आउट द एंटायर ईयर, ओके। एंड देयर आर डेंस वेजिटेशन वेयर दे आर फाउंड, तो ये वाटर बॉडीज के ना पास रहती हैं, बिकॉज दे आर फिशिंग कैट्स ना, फिश करती हैं, हंट करती हैं फिशेस को, तो ये वाटर बॉडीज के पास ही रहती हैं। दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स ऑल्सो, एंड इन इंडिया दे आर फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबंस, दे आर फाउंड इन द गंगा वैली, रिवर वैली, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती हैं। एंड इवन वेस्ट बंगाल ने तो इनको अपना स्टेट एनिमल भी 2012 में घोषित कर दिया था, ओके। एंड सेम 2010 सेम स्टेट वेस्ट बंगाल in 2010 launched the fishing cat project. Now there are different threats, as you can see ये पिक्चर है इनकी फिशिंग कैट्स की, ऐसे दिखती हैं, ये चीता जैसी दिखती हैं बट बिल्ली का कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हो। नाउ जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं फिशिंग कैट के, फिशिंग कैट्स दे फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट्स लाइक रिचुअल प्रैक्टिसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, हंटिंग, पॉइजनिंग, पोचिंग, श्रिम्प फार्मिंग, उस केस में भी थ्रेट्स आर देयर ऑन दी यू कैन से पॉपुलेशन ऑफ द फिशिंग कैट्स। नाउ in the news what has been highlighted, न्यूज में क्या हाईलाइट हुआ है, that Chilika Lake which is Asia's largest brackish water lagoon, in you can say collaboration with Chilika Development Authority and Fishing Cat Project, a census has been passed in which it is said that 176 fishing cats have been found in Chilika Lake and they are found in Sri Lankan Java also. ये आपको पॉपुलेशन में ना याद रखना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये जो फिशिंग कैट्स हैं इनका सेंसस काउंट करने के लिए क्या मेथड यूज किया गया, स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड वाज यूज्ड, कैमरास वर प्लेस्ड एंड देन देयर पॉपुलेशन
population was counted. To analyze the data, this kind of method was used. Okay, and this is world's first population estimation. ये दुनिया का पहला population estimation किया गया है फिशिंग कैट का प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क के बाहर. Okay. The third important article on page 1, 10% ethanol blending goal met, says Prime Minister. So our Prime Minister Modi ji, he has announced that India ने जो target रखा था ना, that by 2025-26 we'll be achieving 20% ethanol blending so that we can reduce the carbon emission. India's Prime Minister now is saying that we have achieved 10% of that target. अब 10% ही बचा है और इससे क्या हुआ है, टोटल जो कार्बन एमिशन है उसमें 27 लाख टन की गिरावट आई है. ओके, तो and also it has saved foreign exchange worth rupees 41,000 crore also because of increase in ethanol blending. So what is ethanol? देखो, पेट्रोल को हटाने के लिए, पेट्रोल का यूसेज जो होता है वो कार्बन एमिशन को बढ़ाता है. आप अपने कार्स में, स्कूटीज में जो पेट्रोल डलवाते हो ना, उससे कार्बन एमिशन बढ़ता है इन टर्न, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है. बट इथेनॉल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे यूज किया जा रहा है. ये बायोफ्यूल है विच इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट. शुगर को फर्मेंट करवाया जाता है यीस्ट की मदद से और उससे जो बायोफ्यूल निकलता है वो इथेनॉल है. तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है इसमें, इथाइलिन हाइड्रेशन. ओके, एंड इन दैट वे वी गेट द इथेनॉल. All right. Now the next important article, fourth important article आता है, move to ensure food safety in Kerala schools. So here norovirus here in this article has been mentioned. What is norovirus infection? Norovirus infection केरला में डिटेक्ट किया गया था. Now ये होता क्या है, ये इन्फेक्शन, ये जो वायरस है नोरोवायरस, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस कॉज करता है. आपके पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस है जो कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग है ना, उसको इन्फ्लेमेट कर देता है. ठीक है, उसमें आपकी जलन होने लगती है, इससे वॉमिटिंग, डायरिया भी हो जाता है. और ये ना आप हैंड सैनिटाइजर भी इस नोरोवायरस को खत्म नहीं कर सकता. दिक्कत ये है. एंड अगर आपके फूड में नोरोवायरस है, आप भले फूड को 60 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म क्यों ना कर लो, नोरोवायरस नहीं मरेगा. तो इट इज रेजिस्टेंट टू मेनी डिसइंफेक्टेंट्स. दैट इज व्हाई इट्स अ थ्रेट राइट नाउ. इसीलिए अगर आप फूड को गर्म करके, स्टीम करके खा रहे हो, क्लोरीनेट कर रहे हो वाटर को, उससे भी नोरोवायरस खत्म नहीं होगा. एंड पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोरोवायरस. नोरोवायरस के भी अलग अलग टाइप है और इंसान ना अपनी जिंदगी में एक ना एक बार नोरोवायरस के किसी ना किसी वेराइटी से इन्फेक्ट होता ही होता है. डायरिया वगैरह होता है ना, तो मतलब नोरोवायरस का कोई ना कोई वेराइटी प्रेजेंट होता ही होता है. एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू कंटैमिनेटेड सरफेस और फूड, प्राइमरीली थ्रू ओरल फीकल. नाउ मेक श्योर दैट यू नो ईट लेस फूड फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से ना खाना कम ही खाओ, क्योंकि बाहर जो है वो हाइजीन, घर में तो फिर भी आप मेंटेन कर सकते हो हाइजीन, बाहर हाइजीन मेंटेन मुश्किल से ही होता है. ऑलराइट, इट कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स बट बेसिकली एल्डर एंड कोमॉर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बीपी या शुगर की या हाई हार्ट की या लिवर की कोई दिक्कत होती है, या फिर चिल्ड्रन है, तो उस केस में सीवियर इम्पैक्ट्स नोरोवायरस के are seen. The next important article plans a food for 90th Interpol annual meet. Now here preparations are done in India for the 90th Interpol General Assembly that is to be held in Delhi. इस साल दिल्ली में इंटरपोल का 90th General Assembly की मीटिंग होने वाली है and CBI is the designated nodal body for the Interpol in India. This is important fact for prelims. ये आपके prelims की important fact है. इंडिया में जो इंटरपोल की designated body है वो CBI है. Let us understand what is Interpol. Interpol, basically it was formed in 1923 and the initial name was International Criminal Police Commission. Its headquarters is in France and India is the oldest member of Interpol. India ने 1949 में Interpol को join किया था. ये basically International Criminal Police Organization है, okay? And it started calling itself Interpol in the year 1956. Starting में तो इसका नाम International Criminal Police Commission ही था, ICPC, International Criminal Police Commission. Later on in 1956 it changed its name to Interpol. इंटरपोल जनरल असेंबली क्या है? इट इज सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरपोल. इंटरपोल की जो गवर्निंग बॉडी है वो इंटरपोल जनरल असेंबली है, जो हर साल इसकी मीटिंग होती है और 4 दिन के लिए चलती है. एंड हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस मीटिंग में आता है और हर कंट्री के मेंबर के पास एक ही वोट होता है, ओके? और जो मेंबर आता है, डेलीगेशन आता है, वो बेसिकली उस कंट्री के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का चीफ होता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे.
is the most important articles from the Hindu newspaper. ये थे आज के सबसे important articles Hindu newspaper के that we discussed. I hope you enjoyed this lecture. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel.